welcome dear students. As you can see today we will be discussing reading comprehension strategies so that you can score more than 99 percentile in the upcoming CAT exam. आरसी को देखते ही हम सबको लगता है कि कहानी पढ़नी है, एक पैराग्राफ पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने हैं. हमको लगता है कि इसमें क्या नुआंसेस होंगे, इसमें क्या स्मॉल डिटेलिंग पॉइंट्स होगी, इसको हम क्यों फोकस करें. बट बेटा जिस एग्ज़ाम के लिए आप बैठ रहे हो ना, आरसी हैज़ 70% वेटिंग, 70% वेटेज फॉर दैट एग्ज़ाम. दैट मीन्स तुम्हारे जिस एग्ज़ाम के लिए आप बैठ रहे हो ना, आरसी हैज़ 70% वेटेज इन दैट एग्ज़ाम. और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम आरसी पढ़ के समझ लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस सेंस में पूछे जाते हैं, अक्सर हम उस सेंस को इग्नोर करके अपनी ही नॉलेज से बायस हो जाते हैं. So what we are going to today is that we are going to see 5 major steps that you have to keep in mind, which are actually inspired by Topper's approach to make your grasp of the reading comprehension much more clearer, and when you attempt the question, it should be much more up to the sense so that you can score those marks. You don't need to solve all 4 passages, right? In VARC itself, you have to focus more on your accuracy and instead of solving more and more questions. 10 to 12 correct questions will result in 99 plus percentile. Why I'm trying to say this is that you don't have to attempt all 24 questions, but in those 24 questions, आप 10-12 भी अच्छे से कर ले रहे हैं. 15 तक आपका एक्यूरेसी बढ़िया है और आप माइंड में मान के बैठे हैं कि नहीं, यहाँ तक तो मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी. दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू योर टारगेटेड रिजल्ट. यू हैव टू फोकस ऑन लॉजिक एंड कॉम्प्रिहेंशन. समझ के, सोच समझ के आंसर देना है, ना कि हमको स्पीड के पीछे भागना है. अब वो सोच कैसे डेवलप होगी, हाउ टू डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, फॉर दैट वी आर हैविंग दिस वीडियो. आरसी आपकी इंग्लिश का टेस्ट नहीं है. वहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इस आरसी का मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में, या फिर इस वर्ड का मीनिंग ढूंढ के बताओ. ये नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे. इट विल टेस्ट योर लॉजिक कि जो आपने इतना बड़ा पैराग्राफ रीड किया उससे आपने क्या समझा. आपको आरसी पढ़ के कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करना है, अग्री और डिसअग्री नहीं करना है, अपनी नॉलेज को रिकॉल नहीं करना. आपको बस उस चीज़ से स्टिक करना है जो आपको प्रोवाइडेड है आपके आरसी में. It is nothing but a critical reasoning exercise. What do we mean by critical reasoning? That is, you got a set of information, set of instructions. You just reason based on those instructions. Whatever questions follow, you answer only based on those set of instructions. Now, there is an example. AI enhances decision making but threatens jobs. It is just a sentence. You may agree or disagree to this, right? You may or may not believe in the statement. But if you were to take a logical conclusion out of this, you would say author's stance. Author ये कहना चाह रहे हैं कि balanced है और mild concern है. AI से help तो हो रही है हमारी, लेकिन mild concern भी show कर रहे हैं author. Right? So you don't have to agree or disagree. You just have to figure out what the passage is trying to tell you. Now, as I mentioned, I'll be taking you through these 5 steps so that whenever you encounter RC the next time, you know these 5 steps and they just get ingrained in your brain. You have to just read the paragraph carefully. Like the first paragraph sets the tone and the context. When you're done reading the first paragraph, you should be able to tell the tone of the entire paragraph and what the premise is that the author is trying to establish. You should be careful enough that it is landed in your brain. Second step, identify the structure. What the author is trying to do with his words. Okay, it is often possible that the first paragraph is not coherent with the second or the third. In that case, you have to identify what the author is trying to do. Is he trying to shift the tone? Is he using words like however, but, yet, so that he can make a contrast, right? Or
कोई एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाया गया है, देयरफॉर, हेंस, ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है. All of this is the second step. After you have done realizing the context and tone of the paragraph, you have to see if the author is trying to replicate or alternate between different points of view. Mark every shift in idea or opinion. While you are reading, it should be in your brain that right now author was putting forth a certain kind of idea, but in the second paragraph or later in the RC, you are encountering a totally different argument. So you should be mindful of that whenever you are reading it. Coming to your next step, summarize each paragraph briefly. अब आरसी पढ़ने में इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप 1 लाइन या 2 लाइन समरीज डराइव करो, ठीक है. You come across 4 paragraphs or 3 paragraphs, sometimes it is just one whole paragraph. In that case, you just have to give one word or maybe one phrase to each paragraph. Maybe you can mark it as like paragraph 1 is talking about tone and context, paragraph 2 is giving examples for that, but paragraph 3 is sort of contradicting to our whole argument. You just have to mark each paragraph in that manner. आप सोचोगे कि ये अप्रोच कहाँ से आई एंड इसकी ज़रूरत क्या है. सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू गो टू योर क्वेश्चंस, इसके बाद फॉलोड क्वेश्चंस जब आप देखोगे एंड इफ़ द क्वेश्चन आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट निगेट्स द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर और व्हाट आर द एग्जाम्पल्स दैट द ऑथर हैज़ कोटेड, उस केस में आपको याद रहेगा कि येस एग्जाम्पल्स की बात हुई है तो चलो सेकेंड पैराग्राफ चेक करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की बात हुई है, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स की बात हुई है, थर्ड पैराग्राफ या फोर्थ पैराग्राफ में मैंने नोटिस किया था. इस तरह से टॉगल करना बहुत इजी होगा आरसी और आपके क्वेश्चंस के बीच में. गोइंग टू योर फोर्थ स्टेप, स्मार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग. दिस इज नथिंग बट व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग कि आपने पढ़ा, आपके माइंड में ऑलरेडी टोन आ गया है पैराग्राफ का, मेन आइडिया आ गया है पैराग्राफ का, थीम आ गया है, ये सब ऑलरेडी आपने गेज कर लिया है. तो अगर मेन थीम, टोन या आइडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एक बार में उसको कंफर्म कर दोगे कि येस दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. फैक्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, कोई स्टेटमेंट गिवन है एंड यू हैव टू फिगर आउट विच वन इज राइट बेस्ड ऑन द पैराग्राफ. सो यू हैव टू स्किम थ्रू द स्टैट्स, द एग्जाम्पल्स दैट वर मेंशन्ड इन द आरसी. एक्सेप्ट टाइप क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है कि 4 आर्ग्यूमेंट दिए रहते हैं एंड दे आर आस्किंग which argument aligns with the author's perspective and which does not, except one. उस तरह के questions में you just have to eliminate, you just have to read each option and you have to eliminate which one actually aligns with the idea of the paragraph. इस वाले क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने दिमाग में अपना ही सेंस बनाया होता है. अगर मैं AI के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पैराग्राफ डिस्कस कर रही हूँ, you don't have to use your knowledge based on those topics. You have to just go back to the paragraph, skim through important keywords and then figure out what the author is trying to say and which option actually aligns what the author is trying to say. Okay? उसमें ज़्यादा हमको दिमाग नहीं चलाना है, हमको बस देखना है कि कौन सा फिट नहीं हो रहा, उसको एलिमिनेट करके राइट आंसर मार्क करना है. एंड द लास्ट स्टेप, टाइम कैसे मैनेज करें. बहुत बार ऐसा होता है कोई डिफ़िकल्ट आरसी हमारे सामने आ जाता है, हम 8, 10, 15 मिनट लगा देते हैं उसमें एंड वो एक्चुअल में जो हमें बाद में इजी आरसी मिल सकता था वो हम इग्नोर कर देते हैं उस टाइम स्पैन की वजह से. सो व्हाट टॉपर्स डू इज़ दैट दे प्रैक्टिस सो मच, दे अटेम्प्ट सो मेनी आरसीज that they know what kind of RC would take how long for them. If it's slightly difficult, you should give it 7 minutes or 6 minutes. If it is very easy, it should be done under 5 minutes, something like that. So max 5 to 6 minutes per passage, including the questions. That means to achieve that time frame, you have to practice so much that you are done with reading, skimming, and going through all the questions in just 6 minutes. Ideally, even if you are attempting 3 RCs, 3 passages with 99% or 90% accuracy, you can score well. Always read with purpose. मज़े के लिए मत पढ़ो उसको कि कोई अच्छी सी स्टोरी गिवन है, कोई फिक्शनल प्रोज है, फिलोसफिकल प्रोज है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. डोंट गो विद दैट माइंडसेट. ओके, सबसे पहले ये देखो कि व्हाट द passage is trying to tell you and what kind of questions are following it. Okay,
जस्ट स्टे इन द माइंडसेट. ये गेम इसका नहीं है कि आप कितना अच्छा रीड कर लेते हो या इंग्लिश समझ लेते हो. ये गेम इसका है कि एक नॉलेज आपको दी जा रही है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आप उसका कितना अच्छे से यूज़ करके एक लॉजिकल आंसर दे पाते हो. आई होप इट्स मेकिंग सेंस टू यू नाउ. So these were the 5 steps that the toppers swear by, and now we'll discuss some common mistakes, because as you know, what makes you different from toppers, or what makes toppers different from others, is that they work on their mistakes first. So we need to know what are common mistakes so that you can learn from others' mistakes as well. Reading too fast, rereading again. हमको लगता है कि भाई हमें 5 मिनट्स में 6 मिनट्स में फिनिश करना है, तो हम बहुत फास्ट रीड कर देते हैं विदाउट इम्प्लीमेंटिंग आर रीडिंग टेक्निक्स. हम बस रीड कर देते हैं. उससे क्या होता है, जब क्वेश्चन सामने आता है यू हैव टू गो बैक एंड रीड द पैराग्राफ अगेन. तो क्या हुआ, टाइम बचाने के चक्कर में डबल टाइम कंज्यूम हो गया. मेमोराइजिंग डिटेल्स इंस्टेड ऑफ आइडियाज़. बहुत सारे पैसेजेस में स्टैट्स दिया रहता है आपको, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स दिए रहते हैं, किसी का नाम दिया रहेगा, पोजीशन दिया रहेगा, तो हम उसको याद करने लग जाते हैं. वी स्टार्ट मेमोराइजिंग स्टफ. इट इज़ नॉट नीडेड. इंस्टेड यू आर सपोज टू मेमोराइज द आइडिया कि अगर किसी की पोस्ट और नेम मेंशन है तो कौन से कॉन्टेक्स्ट पे मेंशन है. यू हैव टू स्टार्ट मेमोराइजिंग दैट. इग्नोरिंग टोन और ओपिनियन वर्ड्स. ऐसा कई बार होता है कि टोन तो हम फिगर आउट कर लेते हैं एंड वी जस्ट assume that the entire paragraph is following this particular tone. But oftentimes, as I mentioned, with words like despite or however, although, these are the words that shift the tone of the paragraph, that change the main idea, that show the transition that is taking place. So we ignore that, and in result, we get confused when we get multiple arguments as option. So do not ignore tone shifting words. ऑप्शन हंटिंग विदाउट कॉम्प्रीहेंशन. कुछ ऐसे बहुत महानुभाव, बहुत होशियार लोग भी हमारे बीच में होते हैं जो सोचते हैं कि आरसी तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ के ऑप्शंस देखने लग जाते हैं. ये इट इज़ मोर कॉमन. अभी आपको बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा होगा ये, बट इट इज़ लाइक वेरी कॉमन. अ लॉट ऑफ यू डू दिस मिस्टेक. डोंट डू दैट. इवन इफ द आरसी इज़ लाइक वेरी ईजी, अपीयरिंग टू बी वेरी ईजी, you can just finish the reading in 3 or 4 minutes and then encounter the questions in the next 2 or 3 minutes. Do not lose marks at least on easier ones, क्योंकि you are sitting for a competitive examination, और अगर आप आसान questions भी hold नहीं कर पा रहे हो, आसान questions भी consolidate करके solve नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहीं के वहीं competition से बाहर हो जाओगे. जो कि मेरा last point है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. इवन इफ आपने एक आरसी बहुत अच्छे से कर लिया है, यू डोंट हैव टू गेट ओवर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. यू हैव टू कीप ऑन रनिंग. इट्स अ मैराथन, और अगले 2 और 3 आरसी भी आपको उतने ही अच्छे से करने हैं. डू नॉट स्लैक एनीवेयर सॉल्विंग योर पेपर. जो मैंने टोन और इग्नोरिंग टोन और ओपिनियन वर्ड्स का एग्जाम्पल यही है कि पैसेज का टोन तो क्रिटिकल दिख रहा है आपको दिख रहा है कि फ्लॉज हाईलाइट किए जा रहे हैं. क्रिटिकल टोन में यही होता है कि फ्लॉज हाईलाइट किए जा रहे हैं विदाउट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ सजेशंस. बट कोई ऑप्शन बोलता है कि पॉलिसी को प्रेस किया जा रहा है, या फिर कोई ऑप्शन बोलता है कि पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है बट इसको ऐसे सही कर सकते हैं, यानी कि उसमें एक सोल्यूशन भी दे दिया, तो वो क्रिटिकल नहीं हुआ ऑप्शन. बट हमको लगता है कि इसमें तो गलती निकाली गई है, तो हम उसको गलत मार्क सही मार्क कर देते हैं और हमारा आंसर गलत मार्क हो जाता है. एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी लूज आवर मार्क्स. So now you must remember that RC is not a game of your knowledge. RC is not a game of your English language की knowledge. It is a game of your brain and how logical you can think and answer. Read the flow, not words. Identify tone and purpose. Skip examples and focus on arguments. Make mental summaries. पढ़ते पढ़ते रियलाइज होना चाहिए कि ये पैराग्राफ इस पे बेस्ड था, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ इस चीज़ पे बेस्ड था. एक्यूरेसी इज़ बेटर देन अटेम्प्ट्स. प्लीज़ डोंट शूट इन द डार्क. जो आपके सामने क्वेश्चंस है जिसको लेके आप श्योर हो या जिसके ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसको अटेम्प्ट करना है. योर एक्यूरेसी विल सेव यू एंड नॉट द नंबर ऑफ योर अटेम्प्ट्स. RC is based on logical reasoning and language comprehension. सिर्फ language से काम नहीं चलेगा, logic भी लगाना पड़ेगा. Understand करो the idea that has been given to you and do not memorize it. Precision is better than speed, as we had discussed. You don't read more, you read smarter.
Don't read the paragraph again and again. Just read it once and read it in such a way that it is enough, one time only. That's all. Thank you so much. And I hope I'll be seeing you in the next video.